خوش قسمت ناریل۔ چندن پور نام کا ایک بے حد خوبصورت دیہات تھا۔ یہ دیہات خشک اور پانی والے ناریلوں کے لیے بے حد مشہور تھا۔ ایک غریب تاجر برجو اسی دیہات میں اپنے ناریلوں کی ایک دکان کیا کرتا تھا۔ اوپر والے کا بھی بڑا کرم ہے، جنت جیسے دیہات میں مجھے پیدا کیا، یہاں تو بے حد سکون ہے۔ برجو کا ناریل فروخت کرنے کا ایک ٹھیلا تھا جس پر وہ ناریل فروخت کر اپنی زندگی گزر بسر کرتا۔ ناریل لے لو، میٹھے میٹھے ناریل لے لو، ملائی دار ناریل لے لو، مندر میں عبادت کے لیے ناریل لے لو۔ اور اسی طرح برجو کا ہر روز کا کام جاری رہتا تھا۔ ایک روز اسے رونے کی صدا سنائی دیتی ہے۔ ارے یہ کیا، یہ کون رو رہا ہے؟ ادھر دیکھو انسان، میں رو رہا ہوں۔ برجو حیران زدہ ہو کر سنتا ہے۔ بولو کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تم بہت دن سے مجھے اس ٹھیلے پہ رکھے ہو، مجھے بیچتے بھی نہیں ہو اور کاٹتے بھی نہیں ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ دراصل جب میں نے تمہیں پیڑ سے نکالا اس وقت تم مجھے عجیب لگے۔ جس روز سے میں نے تمہیں اپنے ٹھیلے پہ رکھا ہے اس دن سے میری کمائی میں اضافہ ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے۔ پر انسان، مجھے ہر وقت یہی خوف لگا رہتا ہے کہ تم مجھے کبھی بھی زخمی کر سکتے ہو یا پھر کسی روز کوئی شخص مجھے پتھر پر پھینک دے گا۔ ڈرو مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بہتر ہے انسان، قدرت کا قانون ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے آخر کار جانا ہی ہے، اور میں رکھے رکھے سڑ کر مرنا نہیں چاہتا۔ میرے حق میں کوئی فیصلہ کرو انسان۔ برجو کے دل میں یہ بات اتر جاتی ہے۔ رات بھر وہ اسی خیال میں سوچتا رہتا ہے، پھر الصبح اٹھ کر ٹھیلے کے قریب آتا ہے اور اس خاص ناریل کو اٹھاتا ہے۔ کیا تم مجھے آج کھانے والے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ برجو اس ناریل کو عبادت گاہ کی طرف لے کر آتا ہے اور ایک پانی سے بھرے گھڑے کے اوپر وہ اسے آہستہ سے رکھ دیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے، میرے فائدے سے زیادہ تمہارا مندر میں رہنا زیادہ مفید ہے۔ اور اس طرح برجو وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی روز کے گزرنے کے بعد اس ناریل کے اوپر پتیاں نکلنے لگتی ہیں اور وہ ناریل ایک چھوٹا پودا بن جاتا ہے۔ سنو برجو، تمہارے رکھے اس ناریل میں پودا اگایا ہے، اسے جا کر باہر اپنے گھر کی زمین میں لگا دو، مستقبل میں تمہیں بہت فائدہ دے گا یہ۔ برجو اس ناریل کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے، ایک گڈھا کھود کر اس میں اسے لگا دیتا ہے۔ کچھ برسوں کے گزرتے ہی وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے۔ یک بیک ایک رات برجو کو نیندوں میں کچھ سنائی دیتا ہے۔ برجو اٹھو برجو۔ برجو کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ باہر آ کر دیکھتا ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ وہی درخت اسے آوازیں دے رہا تھا۔ بولو بھائی، کیا مدد کروں میں؟ برجو، تم نے میری قسمت بدل دی، اب تمہاری باری ہے۔ اور پھر کچھ ہی روز کے بعد اس ناریل کے درخت میں بے گنتی ناریل لگ جاتے ہیں۔ سچ ہے دوست، کوئی نیکی کا بدلہ چکانا تم سے سیکھے۔ ایک پورے باغیچے جتنے ناریل ایک درخت پر ہیں۔ شکریہ تمہارا دوست۔ اور پھر اسی طرح برجو آگے چل کے ایک بڑا تاجر بن جاتا ہے اور ہر وقت اس ناریل کے درخت کی خوب خدمت کرتا ہے۔ شرون نام کا ایک ضعیف شخص رہتا تھا۔ اس کے ایک بہو، ایک بیٹا اور ایک پوتی ہوتی ہے۔ وہیں شنکر نام کا اس کا ایک بہت ہی عقل مند دوست بھی ہوتا ہے۔ دونوں بچپن کے دوست ہوتے ہیں۔ ارے بہو، ذرا کھانا دو گی؟ بہت بھوک لگی ہے۔ ذرا ٹھہریے، بعد میں دیتی ہوں۔ سنیے ابا جان، ایک تو کام کچھ کرتے نہیں ہو اور جو مل رہا ہے وہ کھا لیجئے۔ بار بار ہر ایک چیز کے لیے بہو کو پریشان مت کرو۔ یا اوپر والے، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی مجھے ایسی سزا مل رہی ہے؟ ایک روز یک بیک شرون کا دوست شنکر دیہات سے اس سے ملنے آتا ہے۔ شنکر، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، کتنے روز بعد آئے ہو۔ بچپن سے تمہارا سہارا ملتا آیا ہے، تم نے اپنی دوستی ہمیشہ نبھائی ہے۔ ارے تعریف ہی کرتے رہو گے یا کچھ کھلاؤ گے پلاؤ گے بھی؟ ہاں کیوں نہیں۔ ارے سنجو سنو تو صحیح،
जरा बहू से कहो कुछ अच्छा खाना तो लगा दो। तुम्हारे शंकर चचा जान आए हैं। अब्बा जान, मैं तो मसरूफ हूँ, आप खुद ही बहू से कह दो, मेरे पास फिजूल वक्त नहीं है। श्रवण बेहद नाराज होता है और बहू के करीब जाता है। सुनो बहू, मेरा दोस्त आया है, कुछ अच्छा सा खाना उनके लिए लगा दो। आए हैं तो इससे मुझे क्या गरज, जाइए, मुझे बहुत काम पड़ा है। बेटे और बहू दोनों के रवैये को शंकर समझ जाता है। सुनो शंकर, हम बाहर जाकर ये कुछ खा लेते हैं। कोई जरूरत नहीं श्रवण, मैंने सब कुछ सुन लिया है। इस तकलीफ से निजात चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसा करो। क्या वाकई सब कुछ बिल्कुल बेहतर हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। श्रवण अपने दोस्त के घर कुछ रोज रहने के लिए जाता है। शंकर का खानदान श्रवण की खिदमत में कोई कसर नहीं रहने देता। सुनो शंकर, अब मैं अपने घर जाता हूँ। अच्छा, बेहतर है, जाओ, अपने साथ ये चाबी भी लेते जाओ। इसे बार बार अपनी उंगली में गोल गोल घुमाते रहना, यही तुम्हारी किस्मत बदलेगी। अजी सुनिए तो जरा, ये अब्बा जान जब से अपने दोस्त के घर से आए हैं कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा है, बार बार अपनी उंगली में चाबी घुमाते रहते हैं। मुझे दादा जान ने कहा है कि वो चाबी एक खजाने की है। मुझे दादा जान ने कल ही बताया है, और जो भी बहुत दिल से आखिर वक्त तक उनकी खिदमत करेगा उसको ही वो चाबी मिलेगी और खजाने का भी पता मिलेगा। अब्बा जान, आज मैं आपके पैर दबाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत तकलीफ दी है आपको आज तक। अब्बा जान मुझे भी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आज से सिर्फ आपका हुक्म जो होगा वही करेंगे। आप इस खानदान के अमीन हैं, आपको जो कुछ भी खाना हो तो आप मुझे हुक्म दीजिएगा, मैं अपने हाथों से बनाकर आपके सामने पेश करूंगी। एक रोज शंकर श्रवण से मिलने के लिए घर आता है, तब उसे बेहद तब्दीली नजर आती है। अरे चाचा जान, आइए ना। और श्रवण, क्या हाल चाल है? अब तो बहू बेटे तुम्हें परेशान नहीं करते हैं ना? अरे बिल्कुल नहीं शंकर, बस तुम्हारी मेहरबानी है। पर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे पास कोई खजाना नहीं है और ना कोई ठिकाना। देखो श्रवण, कभी कभी बुराई खत्म करने के लिए अच्छे के लिए झूठ बोलना पड़ता है। उसी रोज से श्रवण के बहू और बेटे दोनों ही सुधर जाते हैं और श्रवण उसी चाबी की मदद से अपनी जिंदगी आखिर तक बहुत इत्मीनान से गुजारता है। ईमानदार लकड़हारा। एक देहात में दो लकड़हारे रहा करते थे, एक बहुत ईमानदार और दूसरा पक्का काहिल। दोनों लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करते। ईमानदार लकड़हारा अल सुबह ही लकड़ियां काटने के लिए जंगल की जानिब रवाना हो जाता। एक रोज जब वो अल सुबह ही जंगल की जानिब रवाना हुआ और जंगल में दरिया के किनारे एक दरख्त के पास पहुंचा और दरख्त को काटने लगा कि यकबयक उसकी कुल्हाड़ी उछलकर पानी में जा गिरी। अरे ये क्या, मेरी कुल्हाड़ी? इसके बिना मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा? मेरे पास तो और कोई कुल्हाड़ी भी नहीं है। ऊपर वाले मेरी मदद कर। यकबयक पानी में से पानी की मलका नमदार हुई और उन्होंने कहा, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। ठहरो बेटा, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें लौटा देती हूँ। पानी की मलका एक सुनहरी कुल्हाड़ी के लकड़हारे को ला कर देती है। लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। पानी की मलका ने एक दूसरी चांदी की बनी हुई कुल्हाड़ी निकाली और उसे देकर कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तुम इसे ले सकते हो बेटा। नहीं नहीं मलका, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत आम सी और लोहे की बनी हुई है, आप मुझे वही लौटा दीजिए। पानी की मलका ने फौरन एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और उसे देकर पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? लकड़हारे ने पुरमसरत अंदाज में कहा, हाँ हाँ मलका, यही है मेरी कुल्हाड़ी। बेटा तुम गरीब हो,
मगर हो बहुत ईमानदार। अगर तुम चाहते तो किसी भी कुल्हाड़ी के हकदार बन जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम ये तमाम कुल्हाड़ियां रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ईमानदार लकड़हारा खुशबाश होकर अपनी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर पहुंचा और घर जाकर अपनी बेगम को तीनों कुल्हाड़ियां दी और उसे पूरा वाकया सुनाया। काहिल लकड़हारा इनके घर के करीब से ही गुजर रहा था और उसने ये तमाम बातें सुन ली। अगले रोज ईमानदार लकड़हारे ने सुनहरी कुल्हाड़ी को बेच दिया और खुशबाश जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन वो हमेशा की तरह ही जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जरूर जाता। उसने ये फरामोश नहीं किया और काहिल लकड़हारा ये देखकर हैरान ज़दा रह गया और उसने कहा, कितना बेवकूफ है ये, अमीर होने के बावजूद भी जंगल में चक्कर काट रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, चलो इसका पीछा करता हूँ। काहिल लकड़हारा उसका पीछा करते हुए दरिया के किनारे तक पहुंच जाता है। अच्छा, ये है वो जगह जहाँ से इसे सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली। ईमानदार लकड़हारे के जाते ही काहिल लकड़हारे ने इरादतन अपनी कुल्हाड़ी दरिया में फेंक दी और फिर रोने लगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। दरिया में से पानी की मलका नमूदार हुई और उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी देते हुए इससे दरियाफ्त किया, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? लेकिन वो लकड़हारा तो अब बेहद लालची हो चुका था और उसने कहा, नहीं नहीं मलका, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर पानी की मलका ने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर मलका ने सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली और कहा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है मलका, यही है कुल्हाड़ी। पानी की मलका को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने कहा, तुम काहिल तो पहले ही थे, लेकिन अब तुम लालची और झूठे भी हो चुके हो। फौरन अपनी शक्ल गुम करो, अब तुम्हें कोई कुल्हाड़ी हासिल नहीं होगी और यही तुम्हारी सजा है। काहिल लकड़हारा अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने घर खाली हाथ लौट आया और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी खो बैठा। हिंदुस्तान में रिवायती एक फन है जिसमें काठ की पुतलियों को रक्स कराने वाला पर्दे के पीछे से सदाएं देता है, जिससे सामने बैठे नाजरीन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे काठ की पुतलियां ही बातें कर रही हों। इसी तरह से कठपुतलियों का तमाशा दिखाने वाला जीवन नाम का एक शख्स था। अपने बुजुर्गों से चली आई रिवायत को चलाता आ रहा हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा, बस खुदा मुझे ताकत दे। एक रोज जीवन एक देहात में कठपुतलियों का तमाशा कर रहा था। उसके पास का पर्दा जरा फटा हुआ था जिसमें से वो तमाशा दिखाया करता था। अरे भाई, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? हमें सब नजर आ रहा है, आवाज तो तुम ही निकाल रहे हो। कोई कठपुतली नहीं बोलती। वही बाप दादा की घिसी पिटी दास्तान और पुरानी कठपुतली। जाओ भाई, कुछ नया लाओ, वक्त बर्बाद मत करो। तमाम अफराद उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। ए खुदा, हर जगह यही सुनने को मिलता है। अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं? अब मेरा क्या होगा? जीवन एक दरख्त के नीचे सो जाता है और नींद में उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। मैं 2 दिन फाका रहूंगा, लेकिन नई कठपुतली लेके रहूंगा। दूसरे ही रोज जीवन कठपुतली की दुकान की जाने आता है और दुकानदार से कहता है, ओ भाई, मुझे इतने पैसे में एक कठपुतली चाहिए। इतने पैसे में क्या आएगा? इतने में तो कठपुतली के लिबास भी ना आए भाया, तो मेरी पुरानी वाली ऊपर से ले लो। ठीक है, वो जो कोने में धूल खाती पड़ी है वो कठपुतली ले जाओ, इतने रकम में वही आ सकती है, बहुत बरसों से पड़ी है, शायद ये तुम्हारी मुंतजिर थी भाई। जीवन वो कठपुतली को साफ करके दुकान से चल देता है और धूप की वजह से एक दरख्त की छांव में सो जाता है। जागो जीवन, जागो,
मैं बोल रही हूँ। जीवन की आंखें खुल जाती हैं और उसे कौन सदाएं दे रहा है देखता है और फिर जीवन हैरान ज़दा रह जाता है। अरे खौफ ना करो जीवन, मैं एक तिलिस्माती कठपुतली हूँ जो उस दुकान में बरसों से तुम्हारी मुंतजिर थी। तुम्हारे लम्स से ही मुझे जिंदगी मिल गई है। यही ऊपर वाले की मर्जी है, चाहो तो मुझे अपने साथ लेके खेल कर सकते हो। पर मुझ में जरा भी ताकत नहीं है खेल करने की। तभी कठपुतली चुटकी बजाती है और लजीज खाने उसके सामने आ जाते हैं। अरे ये क्या, तुम वाकई तिलिस्मी हो। अब मेरे तमाशे से कोई बेजार भी नहीं होगा। क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? जी जी, आज से आप मेरे आका हैं। आपका जो हुक्म होगा मैं वही करूंगी। दूसरे ही रोज जीवन एक देहात में अपना तमाशा दिखाने के लिए जाता है। आओ भाई, देखो भाई, कठपुतली का अनोखा खेल। बगैर पर्दे, बगैर मेरी आवाज निकाले जादू दिखाएगी कठपुतली। लोगों का मजमुआ लगने लगता है। मैं तुम्हें गधा बना सकती हूँ। बना कर दिखाऊं? अकड़म बकड़म चूचा, मेरे आका का काम करने के लिए चाहिए एक गधा। यही है तुझसे जादूगर का सौदा। देखते ही देखते आदमी गधा बन गया। अकड़म बकड़म चूचा, मेरे आका को करनी है सैर थोड़ी, बन जा तो उनके लिए नाचने वाली घोड़ी। देखते ही देखते वो शख्स भी घोड़ी बन जाता है और सब लोग खूब तालियां बजाते हैं। सब लोग जीवन को खूब बख्शीश भी देते हैं और इस तरह से जीवन के तिलिस्म को शोहरत मिलने लगती है। और इस तरह से तिलिस्माती कठपुतली और मेहनत के साथ वो एक बड़ा जादूगर बन जाता है। जादुई बोतल। अबू नाम का एक मछुआरा था। वो समंदर के किनारे रहता था और अब उसे याद भी नहीं होगा कि वो कब से मछुआरा बना। जब वो जवान था तब सारी रात मछलियाँ पकड़ा करता था और सुबह ताजी मछलियों के ढेर को वो वहाँ के बाजार में ले जाकर फरोख्त करता था। अबू अब करीब 80 बरस का हो गया था। अब वो कश्ती से ज्यादा सफर नहीं करता था। अब वो किनारे से ही जाल फेंकता था और वो भी दिन के एक पहर में सिर्फ 4 बार। उससे जो मछलियाँ मिलती उनमें से वो अपने लिए कुछ रख के बाकी चंद पैसों में वो बाजार में फरोख्त करता। एक दिन वो सुबह ही समंदर पर मछलियाँ पकड़ने के लिए गया। उसने जाल पानी पर फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके जाल में कुछ वजनदार फंसा है। फिर उसने वो जाल खींचा और देखा तो उसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ था। या अल्लाह! वो चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक मरे हुए गधे के लिए। क्या करूं मैं? अब क्या खाऊं मैं? उसने अपनी मदद के लिए सोलोमन से दुआ की, जो पहले का एक राजा था और खुदाई का दावा करता था। उसने फिर से जाल फेंका। थोड़ी देर के बाद उसे महसूस हुआ कि जाल में कुछ फंसा है और इस बार जाल पहले से ज्यादा भारी था। बड़ी मेहनत से अबू ने जाल खींचा। देखा तो उसमें रेत से भरा हुआ घड़ा था। या अल्लाह! वो फिर चिल्लाया, इतनी मेहनत, वो भी एक रेत के भरे घड़े के लिए। क्या करूं मैं? अब क्या खाऊं मैं? उसने फिर से अपनी अच्छी किस्मत और ताकत के लिए सोलोमन से दुआ की। अबू ने तीसरी बार पानी में जाल फेंका और अब की बार पिछली दोनों बार से ज्यादा भारी कुछ फंसा था। उससे करकराने की आवाज आ रही थी, जैसे बर्तन एक दूसरे से टकरा रहे हों। कुछ अंदाजा हुआ वो क्या होगा। पुराने संदूक, बर्तन, तश्तों का ढेर, और वो भी पूरी तरह से जंग लगा हुआ और बिना किसी काम का। अबू ने आसमान की जानिब देखा। सोलोमन खुदा, मैं दिन में सिर्फ 4 बार जाल पानी में फेंकता हूँ और अब तक 3 बार फेंक चुका हूँ। अगर मैं बिना एक भी मछली पकड़े घर गया तो यकीनन भूख से मर जाऊंगा। मेहरबानी अपने इस एतबार करने वाले की हिफाजत करो। अबू ने आसमान की जानिब देखकर गमज़दा सदा दी और ऐसी दुआ के साथ अबू ने आखिरी बार पानी में जाल फेंका। इस बार सबसे भारी चीज अबू के जाल में फंसी और जाल निकालने के लिए अबू को गहरे पानी में उतरना पड़ा। उसने देखा कि एक पीतल की बोतल थी। इस बार अबू बहुत खुश हुआ।
भले ही कोई मछली नहीं थी, लेकिन पीतल की बोतल इतनी भारी थी कि कोई भी उसे 10 सोने के सिक्कों में खरीद लेता, जिससे अब वो अपने लिए पूरे महीने भर का राशन खरीद सकता था। लेकिन वो बोतल शीशे की सील से बंद क्यों थी? अबू ने करीब से देखा तो उसे दिखा कि वो सील और किसी और की नहीं बल्कि सोलोमन की थी। अब तो वो और ज्यादा बेचैन हुआ ये देखने के लिए कि उस बोतल के अंदर क्या है। उसने वो सील अपनी चाकू से खोला और जैसे ही उसने बोतल खोली उसमें से एक बड़ा सा इफरित बाहर आया। एक बड़ी दहाड़ के साथ वो 100 फीट ऊंचा आया। अबू इतना डर गया कि उसकी चीख निकल पड़ी। इफरित ने अबू को देखा और उसने अपनी कामत को छोटा किया, फिर भी वो 10 फीट का था। मछुआरे, क्या तुमने मुझे आजाद किया? उसने कड़कड़ाने वाली आवाज में पूछा। मैं जी जनाब इफरित, मेरा नाम अबू है। अबू? अच्छा नाम है। इफरित ने अजीब से हंसते हुए कहा, मैं इस बोतल में काफी वक्त से फंसा पड़ा था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ अबू। अब मुझे बताओ, तुम कैसे मरना पसंद करोगे? मरना? इफरित, मैंने आपको आजाद किया, फिर भी आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मुझे इस बोतल में सोलोमन ने कैद किया था मछुआरे अबू। लेकिन सोलोमन तो 2000 साल पहले यहाँ राज करते थे। हाँ, पक्का कहूँ तो 1800 साल पहले मैंने उसके खिलाफ बगावत की थी। मुझे इस बोतल में कैद किया था। उसके बाद उसने ये बोतल समंदर में फेंक दी। तब से मुझे मेरी गलती के बारे में बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने आपको कैद से रिहा किया, फिर मेरी जान क्यों ले रहे हैं? पहले 1000 साल मुझे लगता रहा कोई मुझे छुड़ाने आएगा, पर कोई नहीं आया। तो मैंने तय किया जो मुझे छुड़ाएगा उसे मैं जिंदगी भर खत्म ना हो इतनी दौलत दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने सोचा मैं उसे मार दूंगा जो मुझे आजाद करेगा। तुम मुझे बताओ कैसे मरना पसंद करोगे, बोलो। अबू ने सोलोमन से दुआ की कि वो इस आफत से सही सलामत छूट जाए। फिर उसने इफरित से पूछा, साहब, आप कहते हो आपको सोलोमन ने इस बोतल में कैद किया था? पर मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। क्या? इफरित चिल्लाया और उसकी आवाज जैसे बिजलियां कड़की हों। आप बहुत ऊंचे हो, आपके हाथ दरख्त की तरह मोटे हैं। कैसे मुमकिन है तुम एक छोटी सी बोतल में समा सको? मुझे मरने की फिक्र नहीं है, लेकिन एक झूठे के हाथों नहीं मरना। अरे ओ छोटे मछुआरे, मैं बेशक बुरा हूँ, लेकिन मैं मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो साबित करो। अबू के कहते ही इफरित ने हाथों को हवा में घुमाया और फिर वो धुएं में बदल गया। फिर वो धीमे धीमे बोतल में जाने लगा और फिर अंदर से चिल्लाया, देखो कैसे मैं पूरी तरह इस बोतल में दाखिल हूँ। अबू ने झट से शीशे का वो सील उठाया और वो बोतल बंद कर दी और इफरित फिर से अंदर कैद हो गया। इफरित ने बाहर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सील नहीं तोड़ पाया। फिर इफरित कड़कड़ाते हुए चिल्लाया। फिर उसने खुद को खामोश किया और चालाकी से उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने हार मानी। तुम बहुत चालाक हो अबू। चलो, मैं वादा करता हूँ जो इस जाड़ से मुझे बाहर करेगा मैं उसे जवान कर दूंगा। चलो ठीक है, बाहर करो अबू, तुम्हारा इनाम इंतजार कर रहा है। अबू ने वो आराम से सुन लिया और फिर हंसकर उससे कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारी है और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़ईफ जरूर हूँ, लेकिन इतना पागल नहीं। अच्छा, अलविदा। नहीं, रुको, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। अबू ने बोतल को दूर समंदर में फेंक दिया और अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन का शुक्रिया अदा किया। कहानी खत्म हुई। कभी ना हंसने वाली शहजादी। एक रियासत में एक शहजादी थी जो अपनी पूरी हयात में
कभी हंसी ही क्या, मुस्कुराई तक न थी। वो अपने वालिद की बेहद चहेती थी, इसीलिए उसके वालिद को उसे इस हाल में देखकर बहुत रंज होता था। एक मर्तबा उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने रियासत में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई शहजादी को हंसाएगा वो शहजादी से शादी कर सकेगा। फिर क्या था, जोकर, जादूगर और कई फनकार बादशाह के महल में हाजिर हो गए। उन सभी ने अपने अपने तरीके से शहजादी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हंसी ही नहीं। वहीं महल के करीब जैक नाम का एक बहुत ही ईमानदार, थोड़ा सीधा और अजीब लड़का रहता था। वो उसकी गरीब माँ के साथ रहता था। एक बार जैक की माँ ने उसे बाहर जाकर काम ढूंढने को कहा। उस नौजवान ने जल्द ही महल के पास के ताम खाने में मददगार के तौर पर काम शुरू किया। पहले दिन के काम के बाद ताम खाने के मालिक ने उसे तनख्वाह के तौर पर दर्जन भर अंडे दिए, जिसे हाथ में लिए वो घर निकल पड़ा। जैक इतना खुश था कि वो दौड़ते हुए घर जा रहा था और बिल्कुल महल के सामने जहाँ शहजादी खिड़की में खड़ी थी वहाँ आकर वो गिर गया और उसके अंडे टूट गए। शहजादी ने ये सब देखा, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उससे कहा, अरे बेवकूफ कहीं के, तुम अगर सभी अंडों को अपने टोपी में डाल कर लाते तो वो टूटते नहीं ना। अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज दिन भर काम करने के बाद जैक को तनख्वाह के तौर पर खंजीर का एक बच्चा दिया गया। घर जाते वक्त जैक को अपनी अम्मी की बातें याद आई और उसने खंजीर के बच्चे को अपनी टोपी में डालकर घर की जानिब दौड़ लगाई, लेकिन बिल्कुल महल के सामने खंजीर के बच्चे ने किसी तरह टोपी से बाहर छलांग लगाई और भागने लगा। जैक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और कीचड़ से भरे एक गड्ढे में पैर फिसलकर गिर गया और सर से लेकर पैर तक कीचड़ में भर गया। शहजादी अपने महल की खिड़की से सब देख रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल हंसी न आई। जैक जब कीचड़ से लथपथ हालत में घर पहुंचा तब उसकी अम्मी ने गुस्से से कहा, ओह जैक, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने उस खंजीर के बच्चे को रस्सी से बांधा क्यों नहीं? अगली बार जरूर याद रखूंगा माँ। दूसरे रोज जैक ने काफी मेहनत से काम किया, इसलिए उसके मालिक ने खुश होकर रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली दी। जैक ने अपने अम्मी से किए वादे के मुताबिक उस मछली को रस्सी से बांधा और रास्ते से घसीटते हुए ले जाने लगा। लेकिन जब गांव की बिल्लियों को मछली की महक आई तब वो मछली पर टूट पड़ी और खाने लगी। खत्म भी किया और जैक का उस पर ध्यान भी न गया, क्योंकि सिर्फ मछली के कांटे ही रस्सी से बंधे हुए थे और वो हमेशा की तरह शहजादी के सामने से निकल गया। लेकिन शहजादी को जरा भी हंसी न आई। जैक की अम्मी ने बेचैन होकर दोबारा उससे पूछा, उस मछली को तुम अपने सर पर उठाकर क्यों न लाए बेवकूफ? अगली बार मैं वैसा ही करूँगा। दूसरे रोज जैक ने पहले से ज्यादा मेहनत से काम किया। फिर उसके मालिक ने खुश होकर घर ले जाने के लिए उसे एक गाय दी। जैक को अपनी अम्मी को दिया हुआ वादा याद आया। फिर क्या था, जैक ने गाय को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे घर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये तो बहुत मजेदार था। और इस बार शहजादी जो बालकनी से देख रही थी वो जोर जोर से हंसने लगी। वो इतना हंस रही थी कि चाहकर भी रुक नहीं पा रही थी। कौन है वो? किसने मेरी बेटी की खुशी वापस लौटाई? तो एक शख्स ने कहा, जी मैं। और दूसरे ने कहा, मैं हूँ। नहीं, वो शख्स वहाँ है वालिद साहब जिसने मुझे हंसाया। ये कहकर शहजादी ने जैक की जानिब इशारा किया। फौरन उसे शाही महल में ले जाया गया और दूसरे ही पल जैक बादशाह के सामने था। उस नौजवान शख्स को देखकर बादशाह को बेहद मसरत हुई और बादशाह ने जैक और उसकी अम्मी की तारीफ की। वहाँ उनके लिए जश्न रखा गया। कुछ अरसे बाद उन दोनों की शादी हो गई और वो अपनी अम्मी के साथ शाही महल में रहने के लिए चला गया। तब से शहजादी उसके साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रही और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। खत्म शुद। जादुई घोड़ा। ये दास्तान पर्शिया की है। वहाँ के दरबार में फनकार, कारीगर और बहुत से लोग अपने फन को बादशाह के सामने पेश करते थे और अगर वो फन बादशाह को पसंद आता था तो बादशाह उन्हें बहुत इनाम दिया करता था। एक दफा ऐसा ही हुआ। एक मुसाफिर रूबरू आया और उसने एक नकली घोड़ा सामने रखा। बादशाह सलामत, आपने ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा होगा। इसके जैसा अनोखा हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई भी खिलौने वाला ऐसा खिलौने वाला घोड़ा बना सकता है। ये कोई खिलौना नहीं है बादशाह सलामत, और इसकी पीठ पे बैठकर
मैं कहीं भी दूर हवा में जा सकता हूँ, कितनी भी दूर, वो भी बहुत कम वक्त में। फिर मुसाफिर ने घोड़े की काबिलियत दिखाई। ये देखकर बादशाह सलामत को काफी हैरानी हुई और उन्होंने घोड़ा खरीदने के बारे में पूछा। बादशाह सलामत, मैं ये घोड़ा पैसों के लिए नहीं बेच सकता। तो फिर तुम इसके बदले क्या लोगे? इस घोड़े के बदले? बादशाह अगर शहजादी का हाथ उसे दे दे तो वो खुशी खुशी घोड़ा उन्हें दे देगा। उस अनजान मुसाफिर ने यही जवाब दिया, जिसे सुनकर बादशाह का फर्जंद शहजादा डेरियस हैरानजदा हुआ। शहजादा बादशाह सलामत के सामने आया और उसने दरबार में सबके सामने एहतजाज दर्ज किया और फिर उसने कहा, ओह माफ कीजिए अब्बा, आप उस खिलौने वाले घोड़े के लिए मेरी बहन की शादी एक अनजान इंसान से कर देंगे? बादशाह ने उसे मना कर दिया और अपने फर्जंद से उस घोड़े को करीब से देखने के लिए कहा। शहजादा डेरियस घोड़े के करीब आया और वो घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। उसने एक बटन दबाया और फौरन ही घोड़ा हवा में उछलकर छलांग लगाने लगा और वो तेजी से बादलों की जानिब बढ़ गया। अपने फर्जंद की हालत को खतरे में महसूस करके बादशाह ने फौरन ही मुसाफिर को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। उन्हें लगा ये कोई बड़ी साजिश है। इसी दरमियान घोड़ा शहजादे डेरियस को शानदार सवारी के साथ बहुत दूर ले गया और उन्होंने फिर से बटन दबाकर देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। घोड़े को उन्होंने जब करीब से जांचा तो उन्हें एक और बटन नजर आया, जिसे दबाने पर उन्होंने महसूस किया कि घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब आ रहा है। शहजादा घोड़े को जमीन के करीब लाए और उन्होंने दूसरे घर के मुकाबले एक ऊंची छत देखी और वहीं पर अपने घोड़े को उतारना मुनासिब समझा। वो कुछ सीढ़ियाँ उतरे। महल में सोई शहजादी की आंख छत पर हुई आवाज से पहले ही खुल चुकी थी। अपने सिपाहियों से इस अंदर दाखिल हुए फर्द को पकड़ने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने शहजादी को उनके सामने पेश किया। शहजादी ने शहजादी के सामने घुटने टेके। माफ कीजिए शहजादी, मैंने आपको जगाया। मैं बादशाह का फर्जंद हूँ, यानी शहजादा। ये मेरी सबसे खास बात है। वो लड़की बंगाल के बादशाह की दुख्तर शहजादी नादिया थी। शहजादी को उनके पूरे सफर के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। अगले कुछ रोज वो दोनों साथ रहे और एक दूसरे को पहचानने लगे और जल्द ही उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। एक रोज दोपहर में शहजादे ने शहजादी से कहा, ओह मेरी शहजादी, मैं हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। इसके लिए मुझे मेरे वालिद साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और उसने हाँ कह दिया। दूसरे दिन सुबह वो घोड़े के पास गए और बटन दबाते ही बस जरा सी ही देर में वो पर्शिया की जानिब पहुंच गए। शहजादा सबसे पहले शहजादी को अपने महल के करीब जंगल की एक झोपड़ी में ले गया। तुम यहीं रुको, मैं पहले वालिद साहब से मिलता हूँ और उनको बताता हूँ मैं जिंदा हूँ। आप उस खिलौने वाले की जान बख्श दें। पहले मैं अब्बा जान को तुम्हारे बारे में इत्तला देता हूँ, फिर वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए एक जश्न का ऐलान करेंगे। उन्होंने शहजादी को बताया कि जादुई घोड़े को कैसे इस्तेमाल करना है। ये समझा दिया ताकि अगर कुछ नागहानी होती है तो वो फौरन ही घोड़े पर बैठकर वहाँ से फरार हो सके। लेकिन उनकी ये खास बातें एक चोर ने खामोशी से सुन ली थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी, एक शहजादी अकेली और जादुई घोड़े के साथ। मैं उसे कश्मीर के सुल्तान के पास ले जाऊंगा और एक अच्छा इनाम मिलेगा मुझे। शहजादे के गायब हो जाने तक चोर ने इंतजार किया। फिर वो जादुई घोड़े पर जाकर सवार हो गया। उसने शहजादी को धीमे से अपने आगे बिठा लिया और फिर उसने वैसे ही बटन को दबाया जैसे शहजादे ने शहजादी को बताया था। घोड़ा फौरन ही हवा में उड़ने लगा। इधर शहजादी की चीखें सुनकर शहजादा परेशान हो गया। वो लाचार होकर उड़ने वाले घोड़े को दूर से देखता रहा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। यहाँ बादशाह अपने फर्जंद को देखकर खुश हुआ और उसने उस मुसाफिर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया। उसे मालूम हो चुका था कि जल्द ही उसका बेटा वापस जाएगा। शहजादे ने वादा किया कि वो शहजादी के बिना नहीं लौटेगा। वहाँ कश्मीर का बादशाह चोर के इस कारनामे से बेहद खुश हुआ और उसने उसे इसके लिए इनाम भी दिया। वो शहजादी को अपने साथ महल के अंदर ले गया। दूसरे रोज उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाकर शहजादी को बता दे कि आज ही उसे शादी के लिए तैयार होना है। ऐसे हालात में खुद को बचाने के लिए एक तरकीब सूझी। शहजादी दीवानों की तरह बर्ताव करने लगी। जल्द ही उसकी दीवानेपन की खबर बादशाह को दी गई। बादशाह ने शहजादी को ठीक करने वाले हकीम को खूब इनाम देने का ऐलान किया।
इसी दरमियान शहजादा डेरियस अलग अलग सल्तनतों से गुजर रहा था। वो किस रास्ते की जानिब जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन उसकी तमाम ही उम्मीदें मांद हो चुकी थी और फिर ऐसा महसूस होने पर वो एक पत्थर के करीब आराम करने लगा। कुछ काश्तकार उसके करीब आए और उन्होंने शहजादी के बारे में उसे इत्तला दी कि जो कश्मीर के बादशाह के साथ शादी करने वाले दिन दीवानी हो गई है। उसी वक्त शहजादे के दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। उसे लगा कि शायद ये वही शहजादी तो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही वो कश्मीर पहुँचा, उसने एक हकीम की शक्ल इख्तियार की और लबादा पहन लिया। फिर शहजादा डेरियस, जो कि एक हकीम की शक्ल में था, उसने बादशाह को बताया कि वो शहजादी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे शहजादी से अकेले में बात करने दिया जाए। जैसे ही शहजादा कमरे में दाखिल हुआ, उसने उसका हाथ पकड़कर उसके कान में आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारा प्यारा शहजादा हूँ, लबादा बदल के आया हूँ। और फिर शहजादे ने आहिस्ता से अपनी पूरी बात शहजादी को बता दी और फिर फौरन बादशाह के पास वापस आ गया। हो सुल्तान, उगालदान, पानदान, पीकदान, एक छोटा मौका है, मैं उनको ठीक कर सकता हूँ। शायद उन्होंने कोई जादुई चीज को हाथ लगाई है, जैसे कोई बच्चे फिल्मों में देख लेते हैं। पहले मैं उस चीज को देख लेता हूँ। यकदम ही बादशाह को जादुई घोड़े की याद आई। उसने उस घोड़े को लाने के लिए कहा और फिर हकीम को दिखाया। घोड़ा देखने के बाद हकीम ने कहा, ओह, शायद ये वही चीज है जिसने शहजादी पे असर किया है। इस घोड़े को महल के चौक में लाओ और शहजादी को भी उस चौक में लाओ। वो चंद लम्हों में ठीक हो जाएगी। दूसरे रोज की सुबह जादुई घोड़े को मैदान के खास चौक में लाया गया। वहाँ पर उसके आगे कुछ बर्तन भी सजाए गए। शहजादी को बाहर लाया गया और उसे घोड़े के पास करीब किया गया। फिर हकीम बने शहजादे ने उसे घोड़े पर बिठाया और फिर वो आग जलते हुए बर्तनों के करीब गया और उसने अपने पास से उसमें एक सफूफ डाला, जिससे वहाँ धुएं के बादल तैयार हो गए। न शहजादी दिखी और न ही घोड़ा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उसी दौरान शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और जादुई घोड़े ने हवा में फौरन छलांग लगा दी। सुल्तान, बेगम को जीतना पड़ता है, खरीदा नहीं जाता। उसी दिन पर्शिया का शहजादा और उसकी शहजादी पर्शियन दरबार में दाखिल हुए। उन्हें देखकर बादशाह सलामत बहुत खुश हुए और उन्होंने फौरन ही उनकी शादी के जश्न का ऐलान कर दिया। और इसके बाद शहजादा और शहजादी खुशी खुशी रहने लगे और खिलौने वाला भी। कहा, छोटा तिलिस्माती कलम। नोआ अपनी स्कूल की बस से उतरकर सड़क पर चलने लगा। ये वही छोटा सा देहात है जहाँ वो रहता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का आज सबसे अजीब और गरीब दिन होगा। वो एक फुटपाथ पर चल रहा था, तभी उसने एक ज़ईफ आदमी को देखा जो कि ठंड से कांप रहा था और वो बहुत भूखा लग रहा था और खाने के लिए वो बेहद आजिज़ी के साथ में भीख मांग रहा था। मेहरबानी करके मेरी मदद करो, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? नोआ को ज़ईफ आदमी को देखकर रहम आया, इसीलिए वो करीब की ही एक दुकान में गया और उसने खाना खरीदा। साथ ही साथ उसने पानी की बोतल भी खरीदी और दुकानदार को वो पैसे दिए जो उसने अपने नए पेंसिल बॉक्स को खरीदने के लिए बचा कर रखे थे। वो ज़ईफ आदमी उससे ज्यादा दूर नहीं था। ये लीजिए, ये आपके लिए है। शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, मैंने सोचा कि मैं शायद भूखा ही मर जाऊंगा। तुम बहुत रहम दिल हो। खाना खाने के बाद और थोड़ा पानी पीने के बाद, यानी कि नोआ ने मोहब्बत से उसकी देखरेख की, तब वो ज़ईफ आदमी बेहतर महसूस करने लगा और उसे नोआ पर फख्र हुआ। मैं बहुत लंबे वक्त से एक रहम दिल इंसान की तलाश कर रहा था। मुझे यकीन है कि आज मेरी वो तलाश खत्म हो गई है। नोआ पसोपेश में था। जब उसने सुना तो उसने उस ज़ईफ आदमी से मोहब्बत से पूछा, आपका क्या मतलब है? ज़ईफ आदमी ने अपने पास ही झोली में हाथ डाला और एक पुराना सा डिब्बा निकाला। उसके अंदर की चीजों को दिखाने के लिए वो जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा था, वो संजीदा और खामोश दिख रहा था। अंदर एक बहुत पुराना कलम था जो कि रोशन छोटे सितारों की तरह चमक रहा था। इस नजारे को देखकर नोआ हैरान हो गया। यकदम ही ज़ईफ आदमी ने डिब्बे के जंग लगे ढक्कन को बंद किया और कलम नोआ के हवाले कर दिया। नोआ, हाँ
मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ और बहुत लंबे वक्त से तुम्हारे जैसे लड़के की मैं तलाश कर रहा था, जो दूसरों की मदद के लिए अपनी ख्वाहिशों को भी तर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तुम इस जादुई कलम से दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम जो भी चाहते हो उसकी तस्वीर बनाओ, वो फौरन ही तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ओह, क्या वाकई? अरे वाह, बहुत शुक्रिया रहम दिल जादूगर। अब मैं जब चाहूँ तब लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इन 2 बातों को याद रखो। इस तिलिस्म को तुम किसी को भी मत बताना, वरना तुम इससे दूर हो सकते हो। और दूसरी बात, अगर तुम्हें किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े, तुम बस मेरी एक तस्वीर बनाना, मैं वहाँ एक ही लम्हे में पहुँच जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए जादूगर, मैं आपका मशवरा याद रखूंगा। एकदम ही पलक झपकते ही जादूगर गायब हो गया और नोआ खुशी खुशी अपने घर की जानिब चल पड़ा। नोआ अपनी जादुई कलम को आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, तो उसने एक केक और एक मिठाई की तस्वीर बनाई, जो कि फौरन ही उसके सामने एक चांदी के तश्त में हाजिर हुए। अगले ही रोज उसने उससे मिलने वाले हर एक इंसान को उनकी जरूरत की चीजों को देकर उनकी मदद करना शुरू की। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ एक शख्स करीब की एक होटल से भारी भरकम और अजीबो गरीब सामान उठाकर ले जा रहा था, लेकिन उसकी वो कोशिशें नाकाम हो रही थी। उस आदमी की मदद के लिए नोआ ने एक सामान उठाने वाली गाड़ी बनाई, जो कि भारी भरकम सामान को भी अपने साथ ले जा सके। फिर उसने एक छोटी लड़की को देखा जो नंगे पैर थी और माचिस बेचने की कोशिश कर रही थी, और उसकी किसी को परवाह नहीं थी, लेकिन नोआ को उसकी परवाह हुई और उसने उसके लिए कुछ आरामदायक चप्पलों के साथ खाने की एक टोकरी की तस्वीर बनाने के लिए आगे बढ़ा। जरा देर के बाद नोआ ने देखा कि कुछ लोग बेघर हैं और शदीद ठंड में सड़क पर कांप रहे हैं, इसीलिए उसने उन लोगों के लिए कुछ छोटे और खूबसूरत से घर बनाए जिन्हें वो अपना कह सके। इस तरह से नोआ ने अपने करीब करीब के तमाम लोगों की मदद की। एक दिन नोआ जब एक गरीब शख्स की मदद कर रहा था, तब एक खुदगर्ज और लालची मेयर ने उस रहमदिल और मददगार लड़के की जानिब देखा। मेयर ने ये भी देखा कि ये छोटा लड़का एक आम से लेकिन जादुई कलम के साथ किस तरह से इन तमाम चीजों को हवा से बाहर निकाल रहा था। अगले दिन मेयर ने कुछ पुलिस वालों को लड़के को गिरफ्तार करने के लिए कहा और जादू का गलत इस्तेमाल करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मेयर के बनाए हुए कानून के मुताबिक जादू का इस्तेमाल करने की इजाजत सिर्फ वहाँ के अमीर लोगों को ही थी। पुलिस ने नोआ को उसके जादुई कलम के इस्तेमाल के साथ गरीब और बदकिस्मत लोगों की मदद करते हुए देखा और उसी मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे खींचकर मेयर के सामने पेश किया। मेयर ने कहा, नोआ, मैंने देखा है कि तुम कैसे उन बीमार, भूखे, बेघर, गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। अब तुम मेरी भी मदद जरूर करोगे, इसीलिए मेरे लिए तस्वीर बनाओ जो मुझे चाहिए, एक दरख्त जो फकत सोने के फल देता हो। माफ कीजिए साहब, पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि मैं गरीबों और जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ। आप ना तो गरीब हैं और ना ही जरूरतमंद। ये एक गुजारिश नहीं है नोआ, ऐसा करने के लिए तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। माफ कीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता मेयर। बेवकूफ लड़के, फिर तुम एक जालिम सजा के लिए तैयार रहो। मेयर ने तब अपने खादिमों को नोआ से जादुई कलम छीनने के लिए कहा। तब एक पुलिस वाले ने बआसानी ऐसा किया और उसने कलम मेयर को दे दिया। अब मेयर ने एक सुनहरा फल देने वाले दरख्त की तस्वीर बनाना शुरू किया। ये एक अच्छी तस्वीर थी जो रंग बिरंगी बारीकियों से भरी हुई थी, लेकिन कलम के अंदर का जादू उसका जवाब नहीं दे रहा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को तस्वीर बनाने का काम सौंपा, जिसने कई मर्तबा कागज पर तस्वीर बनाने की कोशिशें भी की, लेकिन वो तमाम नाकाम रहे और हार मानकर पुलिस वालों ने मेयर से कहा, हमें लगता है कि कलम हमारा हुक्म नहीं मानेगी सर। ये फकत नोआ के हाथ को पहचानता है, फकत यही लड़का आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। लालची मेयर बहुत ही जालिम था।
नोआ, मैं तुमसे आखिरी मर्तबा पूछता हूँ, क्या तुम मेरे लिए सुनहरे फल वाले दरख्त की तस्वीर बना रहे हो या नहीं? सोच समझ कर कहो, वो ही तुम्हारे आखिरी लफ्ज हो सकते हैं। नोआ एक बहादुर लड़का था, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ इस पूरे मामले को खत्म करना चाहता था। उसने कहा कि वो कुछ तस्वीरें बनाएगा और मेयर ने नोआ को जादुई कलम सौंप दिया। अगली तस्वीर जो नोआ ने बनाई वो कागज के टुकड़े पर एक ज़ईफ शख्स की तस्वीर थी, और जिस जादूगर ने होशियार और रहमदिल लड़के को जादुई कलम दिया था वो नोआ को बचाने के लिए हाजिर हो गया। ज़ईफ जादूगर ने आते ही उन पुलिस वालों को बिल्लियों में तब्दील कर दिया और उसने कहा, मेयर साहब, आप खुद के लालची मंसूबों के लिए इस कलम के जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आप ही वो दूसरे इंसान होंगे जो अपनी खुद की पूंछ को चाटेगा। मेयर बहुत खौफजदा हुआ और खौफ की वजह से वो कांपने लगा। फिर ज़ईफ शख्स ने मेयर को इतना लालची और मौका परस्त ना बनने के लिए कहा। मेयर को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने नोआ और जादूगर से माफी मांगी। अगले ही दिन मेयर ने नोआ को उसके रहम दिल कामों के लिए उसकी इज्जत अफजाई की और मदद के लिए तमाम शहर के लोगों के बारे में सोचने लगा, और नोआ ने उन गरीब बदकिस्मत लोगों की मदद करना जारी रखा और खुशी खुशी उसकी जिंदगी गुजरने लगी। कहानी समाप्त। एक शानदार चुड़ैल। बहुत वक्त पहले गुजरे जमाने में इंग्लैंड के राजा ऑथर को गैर इजाजती जमीन पर शिकार करने के लिए कैद कर लिया गया। रुकिए, तुम्हें यहाँ इजाजत नहीं है शिकार की। तुम्हें किसने कहा यहाँ शिकार करना है? किसने इजाजत दी तुम्हें शिकार के लिए? किसी ने नहीं? तो फिर एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बादशाह के पास लेके जाऊंगा, बादशाह मार्कस। जब बादशाह मार्क्स ने उसे देखा तब उन्होंने कहा, तुम एक समझदार नौजवान नजर आ रहे हो, लेकिन तुम यहाँ शिकार करने क्यों आए हो? तुमने हमारे कायदों को तोड़ा है। मैंने कोई निशान नहीं देखा यहाँ पे। हमारे यहाँ शिकार की इजाजत नहीं है। तुमने हमारे कायदों को तोड़ा है, जो कि एक जुर्म है। अच्छा ठीक है, मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप काफी नर्म दिल इंसान हैं। मुझे ये पसंद आया। मैं आपको एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। ओह ठीक है, तो कैसे? तुम वापस अपनी सल्तनत जाओ और इस मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढो। मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। ओह ठीक है, बेहतर। मैं वापस जाता हूँ सल्तनत में और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढता हूँ। ठीक है, तुम जानते हो क्या सवाल है? ठीक है, अच्छा रुको, मैं तैयार हूँ। सवाल ये है, औरत क्या चाहती है? ओह ठीक है, अच्छा तुम्हें मालूम करके वापस आना होगा। तुम्हारे पास 1 साल है, फिर मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा। ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरी सल्तनत में समझदार से समझदार आदमी के पास भी ये जवाब नहीं होगा। तुम कोशिश करो, 1 साल बाद मिलते हैं। तुम जाओ, आजाद हो, लेकिन भूल मत जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बादशाह ऑथर उसकी रियासत में लौटा और उसने सबसे यही सवाल पूछा। शहजादियाँ, मलकाएं, आलिम, दानिश्वर लोग, लेकिन कोई भी जवाब नहीं जानता था। फिर उसने अपनी एक खादिमा से पूछा, वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि घने जंगल में एक चुड़ैल रहती है, आप उससे क्यों नहीं पूछते? ये अजीब है और तुम मुझे उससे मिलने का मशवरा दे रही हो। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। किसी और ने भी आपको उसके बारे में बताया है क्या? तो आपको जरूर जाना चाहिए। वो इसके बदले में क्या लेगी? मैं आपको खबरदार कर दूं कि इसके लिए जो कीमत चुकानी होगी भारी होगी। अगर उसके पास जवाब होगा तो कीमत से कोई लेना देना नहीं है। अकेले हरगिज मत जाइए, सिपह सालार भी आपके साथ ले जाइए, वो जरा खतरनाक भी है। ओह ठीक है, तुम्हारे मशवरे के लिए शुक्रिया। उस वक्त बाद शब में बादशाह ऑथर ज़ईफ चुड़ैल से मिलने उसके घर गया। वो दरवाजा खटखटाने वाला था कि उसने कहा,
मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं जानती थी आपके पास अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। अगर आपको मालूम है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो मुझे बताओ जवाब। कीमत के लिए रजामंद हैं। तुम अपनी ख्वाहिश बताओ, जो मुझे देना होगा मैं दूंगा। ये करार कबूल किया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। आपके करीबी दोस्त ग्वेन से निकाह करना है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उससे शादी करोगी? सोच के ही मुझे अजीब सा लग रहा है। कीमत चुकाने का वादा किया था। तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? तुम बहुत बदसूरत हो। तुम्हारे मुंह में एक दांत है और तुम कुबड़ी भी हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। मैं अपने दोस्त को इस कुर्बानी के लिए कैसे कहूँ? उससे गुफ्तगू कीजिए, मेरे पास वापस जरूर आएंगे। बादशाह ऑथर के पास और कोई रास्ता बाकी नहीं था। ये कोई कुर्बानी नहीं है। तुम्हारा जीना मेरे लिए कीमती है, समझे? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। सच में तुम मेरे सच्चे अजीज हो। तुम्हारा एहसान रहेगा। ठीक है, उसे बताओ, आगे की तैयारी करो, शादी कल है। तुम अपना जवाब सोचो। बादशाह ऑथर वापस चुड़ैल के घर आए। मैं तैयार रहूंगी। कल शादी के बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। जब शादी के कागजात पर दस्तखत हो गए तब उसने कहा, औरत की जिंदगी पर अपना हक हो। शादी में मौजूद लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया था कि हकीकत यही है कि अब बादशाह ऑथर हिफाजत से हैं। जब बादशाह मार्क्स ने ये दास्तान सुनी तो उन्होंने फौरन ही बादशाह ऑथर को अपनी कैद से आजाद कर दिया। शादी के दरमियान ही ग्वेन चुड़ैल के साथ मोहब्बत से पेश आया, लेकिन आने वाले मेहमान जो कि खानदान के फर्द थे, उनकी अपनी अलग अलग सोच थी। देखो तो वो कैसे खा रही है, सिर्फ उसकी तरफ देखकर ही मुझे शर्म आ रही है। उसने अपने हाथ से ही क्यों खाया है? छी, वो खाते हुए अपने मुंह से आवाज कर रही है। देखो, मैं तो ये ख्याल भी नहीं कर सकती। बेचारा ग्वेन, कितना खूबसूरत है वो सच में एक अच्छा दोस्त है। हाँ बिल्कुल है। और फिर बादशाह ऑथर ने ये तय किया कि नए शादीशुदा जोड़े को तन्हा छोड़ दिया जाए। ओह, तुम कौन हो तुम? मैं आपकी बेगम। मेरी बीवी? ये कैसा मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं ही हूँ, ज़ईफ चुड़ैल। आप मेरे साथ बहुत तमीज से पेश आए हैं, इसीलिए आधे वक्त में मैं खतरनाक शक्ल में रहूंगी और आधे वक्त में खूबसूरत। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं, लेकिन अब आपको ही ये तय करना है कि आप मेरी कौन सी शक्लो सूरत देखना चाहते हैं, रात में और दिन में, क्योंकि आप ही अब मुझे बताएंगे कि आपको मैं किस तरह से पसंद हूँ। ओह वाह, मैं हैरान हूँ। कोई रास्ता है जिसमें तुम सारे वक्त खूबसूरत रहो? आप तय कर लें और मुझे बताएं। अब आपको ही ये तय करना है, रात में और दिन में आप मेरी कौन सी शक्लो सूरत देखना चाहते हैं। मुझे सोचने का वक्त चाहिए। मैं कुछ घंटों में आपको मेरा फैसला बताता हूँ। जो आपकी ख्वाहिश। बेहतर। जब वो कमरे से बाहर गई तब ग्वेन महल के पास के बगीचे में क्या किया जाए ये तय करने के लिए टहलता रहा। क्या करूं? हर कोई तारीफ करे ऐसी खूबसूरत बीवी मुझे दिन में चाहिए ताकि मेरे दोस्त देख सकें, और रात को एक खूबसूरत लड़की, ना कि एक चुड़ैल। क्या मैं इसे उल्टा कर दूं? कुछ वक्त बाद ग्वेन ने फैसला कर लिया और वो सीधा महल के उस कमरे की जानिब गया जहाँ उसकी बेगम पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। तो फिर क्या सोचा आपने? ओ बीवी, मैं तय नहीं कर पाया। शादी में जो लोग आए वो तुम्हारे बारे में अजीब बातें कर रहे थे। मैं अब उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। दिन में उनके सामने खूबसूरत दुल्हन की तरह दिखो, लेकिन फिर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम लोगों के बीच में खूबसूरत रहो, दूसरे भी तुम्हें अच्छी नजरों से देखें। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तो फिर बेहतर है, मैं खूबसूरत रहूंगी दिन भर और रात भर।
हाँ ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूँगा। लोग तो तुम्हें बाहरी खूबसूरती देखते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अंदर से खूबसूरत हो, जिसकी मैं बहुत कदर करता हूँ। ओ ग्वेन, मेरी यही ख्वाहिश थी कि आप ये कहें। अब मेरी सारी बुराइयां खत्म हो गईं, क्योंकि आपकी मोहब्बत और समझदारी ने हर बुराई को दूर कर दिया। चाहे मैं हसीन हूँ या नहीं, आपको कुछ मायने नहीं रखता, और मेरी खातिर आपने अपनी खुशियाँ छोड़ दी और हर हाल में मुझे कबूला। अब मैं हमेशा हसीन रहूंगी आपके लिए। और फिर वो बाकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। जादू में फंसी शहजादी। एक जमाने में एक किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। उनके नाम थे ऑस्टिन और कार्टर। कार्टर, किधर हो? इधर आओ। क्या हुआ? ऑस्टिन, बाढ़ का काम पूरा करो, मैं देहात जा रहा हूँ। ठीक है अब्बा। देहात जाते हुए वो किसान सोचने लगता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। गरीब होने से पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं करीब 2 लोग भी बैठे थे। उसने उनकी बातें सुनी। बादशाह की बेटी को 2 ड्रैगन और एक बुढ़िया ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे वहां से आजाद कराना चाहता है, उसे 3 इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। लोग कहते हैं वो इम्तिहान बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, जो कोई इम्तिहान पूरा नहीं कर पाता, ड्रैगन उसे खा जाता है। और किसी ने भी इन 3 इम्तिहानों को पूरा किया तो, और वो इंसान शहजादी से शादी करेगा और महल के साथ खजाने का मालिक भी बनेगा। फिर किसान ने सोचा, ओह, कार्टर करेगा ये काम। 3 इम्तिहान पूरा करेगा, शहजादी से शादी करेगा और फिर सल्तनत का बादशाह बनेगा। कुछ रोज के बाद कार्टर उनके इकलौते घोड़े पर बैठकर जादुई महल के सफर की जानिब निकल पड़ा। उसने अब्बाजान की दी हुई तलवार को हवा में ऐसे लहराई। वो एक बुरे दिल का लड़का था। जब वो चींटियों के टीले के पास से गुजरा तो उसने उससे निस्तनाबूद कर दिया। वो करीब के तालाब से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के मासूम बच्चे देखे। उन्हें भी परेशान किया। उसके बाद उसने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा और उसने उसे भी अपनी तलवार से तबाह कर दिया। और आखिरकार वो महल की जानिब पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत। उसे इंतजार करवाया, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसकी मीठी सी आवाज में दरवाजा खोला। कौन है? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ। तुम क्या बहरी हो? नहीं, मैं बहरी नहीं हूँ। मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। अरे रुको जरा, पहले तुम्हें 3 अम्रों को पार करना है। कैसे अम्र? अम्र? मैं किसी चीज से नहीं डरता। अब मैं सूरजमुखी के बीज हवा में फेंकने वाली हूँ। वो हवा से इधर उधर उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें उससे उठाकर थैली में जमा करने हैं। 1 घंटे में करना है। तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूँ? ये भी कोई अम्र है? मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। ऐसा कहकर वो ज़ईफ खातून चली गई और वहाँ से रवाना हो गई। ये नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा बीज। जब वो ज़ईफ खातून आई तो उसने दूसरा अम्र बताया। उसने 12 सोने की अंगूठियों को एक गहरे तालाब में फेंक दिया। वो तुम्हें 1 घंटे के अंदर बाहर निकालनी है। मैं दीवाना नहीं हूँ, पानी बहुत गहरा और ठंडा है। तुम अमरों को पूरा नहीं कर रहे हो फर्जंद। चलो खैर, मैं तीसरा अम्र देती हूँ। चलो। ये सब मुझे खराब लग रहा है। जब वो महल में पहुँचे तब वो सीधा अंधेरे कमरे में गए।
3 मुजस्सिमे सफेद कपड़े से ढके हैं। तुम्हारे पास 1 घंटा है ये बताने के लिए शहजादी कौन है। तुमने सही बताया तो वो आजाद, गलत बताया तो फिर मैं दाएं हाथ वाले को चुनता हूँ। दायां मुजस्सिमा, तुम खुद खोलो। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन बचाओ, नहीं ड्रैगन बचाओ। कुछ दिनों के बाद किसान ऑस्टिन से कहता है, कार्टर कहाँ है? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अब्बा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं बेटा, अब मेरे इकलौते बेटे को नहीं जाने दूंगा। मुझ पे यकीन कीजिए अब्बा, मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए घोड़ा और तलवार नहीं है। ऑस्टिन ने सिर्फ एक पाव का टुकड़ा लिया और चलते चलते ही जादुई महल की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहाँ उसने देखा ढेरों चींटियां टीला खुद बनाने की कोशिश कर रही हैं। ओह बेचारी चींटियां, किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे बनाने में। काम होने के बाद वो पानी पीने के लिए तालाब की जानिब गया और उसने बतख के बच्चे देखे। ओह बेचारे बच्चे, तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो पाव के टुकड़े। बतख के बच्चों ने वो पाव का टुकड़ा खत्म किया। उसे जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। उसने वो उठाकर पेड़ की टहनी पर रख दिया। फिर से महल की जानिब अपना सफर शुरू किया। जब वो पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? सलाम, मुझे शहजादी को बचाना है। तुम कोशिश कर सकते हो। उसके बाद उस ज़ईफ औरत ने सूरजमुखी के बीज जमीन पर फेंक दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं इन्हें चुन लूंगा। 45 मिनट के बाद ऑस्टिन ने तमाम कोशिशें छोड़ ही देने वाला था। इतने में ही उसकी मदद के लिए ढेरों चींटियां वहां आ गईं। उसने उनका टीला बनाने में मदद की थी। वाह, शुक्रिया मेरे दोस्तों, ये थैली तो बीजों से पूरी तरह भर गई। शुक्रिया मेरे दोस्तों। उसके बाद वो ज़ईफ औरत वापस आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरे अम्र से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियां इकट्ठी करनी है। ऐसा कहकर उस ज़ईफ खातून ने अंगूठियां पानी में फेंक दी। ऑस्टिन ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन पानी बहुत गहरा था। उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया, लेकिन उसने देखा कि पानी में कुछ हिल रहा है। वो बतख के बच्चे थे जो उसकी मदद करने आए थे। उसने उन्हें पाव का टुकड़ा खिलाया था। ओह शुक्रिया दोस्तों, अब मेरे पास 12 की 12 अंगूठियां हैं। उसके बाद उस ज़ईफ औरत के पास गया। हाँ, सभी 12 छल्ले, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब मेरे पीछे आओ। फिर उस बूढ़ी औरत ने ऑस्टिन को आखिरी अम्र के बारे में समझा दिया। सामने के 3 मुजस्समे देखे तब वो पहचान ही नहीं पा रहा था शहजादी कौन सी है। ओह, ये एक जैसे नजर आ रहे हैं। सोचो ऑस्टिन, सोचो, इनमें से शहजादी कौन हो सकती है? फौरन ही सैकड़ों मधुमक्खियां खिड़की से अंदर दाखिल हुईं। वो बीच वाले मुजस्समे पर भिनभिनाने लगी। वो बीच वाला है। ओह, बीच वाले मुजस्समे खुद देखो। सफेद कपड़ा जमीन पर गिर पड़ा और शहजादी नजर आने लगी। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया ऑस्टिन। और फिर उन्होंने देखा कि ड्रैगन महल छोड़कर बाहर की जानिब जा रही हैं। अब तुम इस महल के मालिक हो, तो मैं चलती हूँ। इसके बाद ऑस्टिन ने शर्त जीत ली थी और फिर उसने शहजादी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और शहजादी राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे और महल में 2 प्यारे से बतख के बच्चे भी नजर आते थे। कहानी खत्म हुई।